welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 4, and the name of the chapter is multiplication, right? So यहाँ पर हम multiplication के बारे में जानने वाले हैं. So let's see how it helps us, right? So सबसे पहले we have to connect this multiplication from our real life कि ये multiplication कैसे real life में हमारी help करता है, right? So it says help Neetu to solve the following multiplication sums to find the products. हमें नीतू की help करनी है ताकि वो इन multiplication sums को solve कर सके ताकि वो products को निकाल सके, right? The products denote the number of apples Neetu has. तो जो नंबर आएंगे, जो आंसर्स आएंगे, वो एक्चुअली हमें हेल्प करेंगे ये जानने में कि नीतू के पास कितने एप्पल्स हैं. Then answer the questions that follow. उसके बाद हमें उन आंसर्स को फॉलो करना है, उन क्वेश्चंस को आंसर करना है जो कि यहाँ नीचे हमें दिए गए हैं, राइट? सो डज फर्स्ट वन 3 2s are 6, then 3 3s are 9. 3 9s are 27 and 3 1s are 3 plus 2 5. 2 1s are 2, 2 4s are 8. 8 2s are 16, 1 carry, 8 1s are 8 and 1 carry 9. 4 3s are 12, 4 2s are 8 plus 1 9. 7 3s are 21, 7 1s are 7, 7 plus 2 9. 4 8s are 32, 4 1s are 4 plus 3 7. 3 7s are 21, 3 1s are 3 plus 2 5. Correct? Now, says how many sets of apples as even numbers does Neetu have? कि कितने सेट्स हैं एप्पल्स के इवन नंबर्स के तरह जो कि नीतू के पास हैं. सो हाउ मेनी आर दे, राइट? सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. She has 8 sets, right? So let's begin with the question answers. It says how many sets of apples as even numbers does Neetu have? तो इनमें से कितने इवन नंबर्स के सेट्स हैं जो कि नीतू के पास हैं. सो द आंसर्स आर दीज. लेट्स सी कि कौन सा इवन नंबर है, राइट? सो 6, इट इज एन इवन नंबर. 1, देन दिस इज ऑड, दिस इज इवन. 2, then 6 again 3, then 2 again 4, then 2 again 5. So 5 sets, right? She has 5 sets that are of even numbers. Next, how many sets of apples as odd numbers does Neetu have? तो कितने सेट्स हैं एप्पल्स के odd numbers के जो कि नीतू के पास हैं? So it is 3 sets of odd numbers. Correct? Next, how many total apples does Neetu have? तो नीतू के पास total कितने apples हैं? Right? So what we are going to do? We are going to add all these products that we have got. And then we will write the answer over here. Correct? Moving ahead. Let's get started and see what is multiplication. So, अब ये multiplication क्या है ये पता लगाते हैं. Multiplication means adding the same number repeatedly. तो multiplication का मतलब होता है जब हम एक ही नंबर को बार बार ऐड करते हैं. The number to be multiplied is called the multiplicand. कि जिस नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहा जाता, जिस नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसको कहा जाता है मल्टीप्लिकेंड. The number by which we multiply is called the multiplier. उस नंबर को जिससे मल्टीप्लाई किया जाता है उसे कहा जाता है मल्टीप्लायर. The result of multiplication is called the product. कि मल्टीप्लिकेशन का जो रिजल्ट आता है उसे हम प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं. So hence
multiplicand into multiplier is equal to product. That means 7 into 4 is equal to 28. Right? Then we have multiplication tables of 7, 8 and 9. तो 7, 8 और 9 का tables यहाँ पर दिए गए हैं. Right? Moving ahead, we have the exercise which says fill in the blanks. 7 sevens are 49. 9 nines are 81. 5 eights are 40. Correct? This is how you can solve them. Then moving ahead, next topic जो हमें दिया गया है, it is multiplication of a 3-digit number by a 1-digit number. सबसे पहले हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट वाले नंबर की 1 डिजिट वाले नंबर से. सो इट इज विदाउट रीग्रुपिंग. जब हम रीग्रुपिंग नहीं करेंगे, लेट अस लर्न हाउ टू मल्टीप्लाई 3 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर्स. तो लर्न करते हैं, सीखते हैं कि कैसे 3 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई किया जाएगा. सबसे पहले है एक्सपैंडेड नोटेशन फॉर्म. तो एक्सपैंडेड नोटेशन मेथड है, मल्टीप्लाई करना है 123 को 3 से. सो सबसे पहले हम इसे एक्सपैंड करेंगे. राइट? 123 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 प्लस 3. देन 123 इंटू 3 इज इक्वल टू 100 प्लस 20 प्लस 3 इंटू 3. तो उसके बाद हमें 3 को इन सभी नंबर से मल्टीप्लाई करना है. 3 को 100 से, 3 को 20 से, देन 3 को 3 से. तो इट बिकम्स 360 प्लस 9. तो क्या बन गया? 369. करेक्ट? इस तरीके से हम एक्सपैंडेड नोटेशन से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. देन वी हैव द कॉलम मेथड. अब ये कॉलम मेथड क्या है? जहां पर हमें मल्टीप्लाई करना है 321 को 3 से. सिंपल, हम उसे कॉलम में अरेंज करेंगे जस्ट लाइक अदर्स वंस, टेंस और 100 कॉलम्स में. राइट? 321 इंटू 3. 3 ones are 3, 3 twos are 6, 3 threes are 9. करेक्ट? तो एंड में हमें 963 आंसर मिल जाता है. एज सिंपल एज दैट. राइट? कुछ स्टेप्स हैं, उन्हें देखते हैं. राइट द नंबर्स इन द कॉलम फ्रॉम फॉर्म एज शोन. जिस तरीके से यहाँ दिए गए हैं उसी तरीके से नंबर्स को कॉलम्स में अरेंज करना है. स्टेप 2, मल्टीप्लाई 1 by 3 and write the product which is 3 under 1's column. राइट? मल्टीप्लाई करेंगे 3 को 1 से, फिर प्रोडक्ट लिखेंगे जो कि 3 है उसी 1's कॉलम में. देन Step 3, multiply 2 tens by 3 and write the product which is 6 in the tens column. Simple as that. Then in the hundreds one, correct, and the answer जो हमें मिलता है multiply करके it is 321 into 3 is equal to 963. Clear? Then we have fill in the blanks. So अब बात करते हैं fill in the blanks में. As we can see, numbers are already arranged in the columns. 2 twos are 4, 2 threes are 6, and 2 fours are 8. Clear? Then, moving ahead, next we have with regrouping. अब अगर हमें regrouping करनी है तो क्या करेंगे? So it is multiply 134 by 4. We proceed as below. इसी तरीके से हम स्टेप्स फॉलो करेंगे. स्टेप 1, राइट द नंबर्स इन कॉलम फॉर्म एज शोन. सबसे पहले नंबर्स को कॉलम में प्लेस करेंगे जैसे दिखाया गया है. स्टेप 2, मल्टीप्लाई 4 ones by 4. मल्टीप्लाई करेंगे 4 ones को 4 से. 4 ones into 4 is equal to 16 ones is equal to 1 tens plus 6 ones. राइट? सेम इसी तरीके से हर नंबर को फॉलो करते जाएंगे. राइट? और कैरी ऑन करेंगे. जिस कॉलम का वो नंबर है उससे अगले कॉलम में हम उसे कैरी करेंगे. करेक्ट? देन इन द सेम वे वी गेट द आंसर 134 into 4 is equal to 536. राइट? सो इट इज डन लाइक दिस. लेट मी टेल यू. सो कॉलम्स में सबसे पहले नंबर्स को अरेंज कर लिया. 4 fours are 16,
1 हमने यहाँ पे कैरी किया. देन 4 3s are 12, 12 plus 1 is 13, 13 यहाँ लिखा, 1 कैरी किया. 4 1s are 4 plus 1 5 हमने यहाँ लिखा. Clear, and we got the answer 536. Correct. Next we have some common errors जो हम कर देते हैं. Let's see what are they. Always remember to add the carried over digit. हमें हमेशा कैरी ओवर जो डिजिट होती है उसको मेंशन करना होता है. ये हमें हेल्प करता है ताकि हम करेक्ट आंसर को ढूंढ पाए. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव exercise which says multiply the following. Already the numbers are arranged in the columns. Let's see how we do it. So this 3 7s are 21, 3 zeros are 0, and plus 2 is 2, 3 2s are 6. Correct. Then moving ahead, we have multiplication of 2-digit number by a 2-digit number. तो अब हम 2 डिजिट वाले नंबर को 2 डिजिट वाले नंबर से ही कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो जानेंगे. सबसे पहले विदाउट रीग्रुपिंग. सो इट इज मल्टीप्लाई 32 बाय 13. सबको कॉलम में अरेंज करेंगे इसी तरीके से. राइट. तो स्टेप 1, राइट द नंबर्स इन कॉलम फॉर्म. वो हमने कर लिया. सिंस 13 इज इक्वल टू 10 प्लस 3, सो 32 इंटू 10 32 into 13 is equal to 32 into 10 plus 3 is equal to 32 into 10 plus 32 into 3. Clear? So we first multiply 32 by 3 and write the product. पहले हम 32 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका आंसर लिख देंगे. करेक्ट. जो हमने यहाँ पर किया. Then what we are going to do now, multiply 32 by 10 and write the product. अब 32 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और तब आंसर लिखेंगे. नाउ एड द 2 प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 एंड स्टेप 3. अब स्टेप 2 और स्टेप 3 में हमें जो 2 आंसर मिले हैं उनको प्लस कर देंगे, ऐड ऑन कर देंगे और हेंस हमें अपना आंसर मिल जाएगा. दैट इज 460. क्लियर. सो लेट्स डू दिस. मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. ऑलरेडी द नंबर्स आर अरेंज्ड लाइक दिस. सो 12 इंटू 32 करना है तो सबसे पहले हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. 2 2s are 4, 2 1s are 2. तो पहला आंसर हो गया 24. देन 3. अब 3 टेंस प्लेस पर है तो इसके आगे हमें 0 लगाना पड़ेगा. उसके बाद हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 30 से. 12 इंटू 30. करेक्ट. सो द आंसर इज 3 2s are 6, 3 1s are 3 and 0. So the answer is 360. 360. अब इन्हें प्लस कर देंगे. 4 is 4, 6 and 2 is 8 and 3 is 3. So यहाँ पर आ गया 384 हमारा आंसर. करेक्ट. देन मूविंग अहेड विद रीग्रुपिंग. अगर हमें रीग्रुपिंग करनी है तो हम क्या करेंगे. मल्टीप्लाई 59 बाय 43. अगर हम 59 को 43 से मल्टीप्लाई करें तो जल्दी से इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं. राइट द नंबर इन कॉलम फॉर्म एज शो. नंबर्स को कॉलम में लिखेंगे जैसे यहाँ दिखाया गया है. राइट. सिंस 43 इज इक्वल टू 40 प्लस 3, 59 इज इंटू 43 इज इक्वल टू 59 इंटू 40 प्लस 3 इज इक्वल टू 59 इंटू 40 प्लस 59 इंटू 3. तो सबसे पहले 59 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट लिखेंगे. फिर 59 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर प्रोडक्ट लिखेंगे. करेक्ट. देन उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें हम दोनों ही नंबर्स को ऐड कर देंगे जो हमें स्टेप 1 और स्टेप 3 में उनको मल्टीप्लाई करके मिले थे. राइट. उन दोनों प्रोडक्ट्स को ऐड करने के बाद हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि है 59 into 43 is equal to 2537. Clear? Then it is solve the following. Again we have the numbers arranged in the columns. So it is 4 6 are 24, 4 8s are 32 plus 2 34, 3 6 are 18 plus 1
sorry. Then 3 6 are 18. So let's write 18 over here. 3 8s are 24. 24 plus 1, 25. Then adding these two, 4, 8 plus 4, 12, 1 carry, 3 plus 5, 8, 1 carry, 9, then 2. Correct? So this is the answer. Then we have properties of multiplication. अब multiplication की कुछ properties हैं. तो यहाँ पर है सबसे पहले older property. When two or more numbers are multiplied in any order, the product always remains the same. कि हम जिस भी order में दो numbers को multiply करें, चाहे 24 को 17 से, चाहे 17 को 24 से, हमें आंसर 408 ही मिलेगा. करेक्ट. मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो, तो जीरो का मल्टीप्लीकेशन क्या है? कोई भी नंबर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा जीरो. मल्टीप्लीकेशन बाय वन, when any number is multiplied by 1, the product is the number itself. जब भी किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वही नंबर अपना प्रोडक्ट बन जाएगा. क्लियर? Then we have the next, which is multiplication by 10, 100 and 1000. अब 10, 100 और 1000 से कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे? So it is, if a number is multiplied by 10, add 1 0 to the right side of the number. किसी भी नंबर को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसके राइट साइड पे आप एक जीरो ऐड कर दोगे. सपोज अगर मैं 23 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर इज सिंपल 230. वही नंबर के आगे हमने एक जीरो ऐड कर दिया. If a number is multiplied by 100, then add 2 zeros to the right. अगर हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो लगा देंगे. If a number is multiplied by 1000, add 3 zeros. 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 zeros उसके बाद हम लगा देंगे. इट इज़ वेरी सिंपल कि हम इन्हें 10, 100 और 1000 से बहुत ही इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं. Now next is multiplication by 20, 30, 40 and 90. तो अगर हम इन्हें कैसे मल्टीप्लाई करें 20, 30, 40 और 90 से. So let us look at how we multiply any number. तो अगर हमें 20 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो सिंपल 2 और 4 को ले लेंगे, 0 को हम हटा देंगे. स्टेप 1, मल्टीप्लाई 2 विद 4. 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा और एंड में उसके आगे हम ये 0 जो यहाँ हटाया था उसको ऐड ऑन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 80. क्लियर? सेम गोज विद दिस ऑल्सो. 0 हटा देंगे, 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 100 और एंड में उसके आगे वो जो हटाया हुआ 0 था इसको लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1000. क्लियर? नाउ मल्टीप्लाई द फॉलोइंग. अब जल्दी से इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं. 15 इंटू 0, तो ऑब्वियसली किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0. 138 इंटू 0, 0. 450 इंटू 1, 450. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही आता है 450. 45 इंटू 10, हमने देखा था कि उसे नंबर को वही लिखना है और सिर्फ उसके आगे 0 ऐड कर देना है. Same 2 into 1000 is 2000. Correct? Moving ahead. Next we have the chapter at glance. Let's see what we read in this chapter. So first point, the number being multiplied is called multiplicand and the number by which we multiply is called multiplier. वो नंबर जो मल्टीप्लाई किया जा रहा है उसे मल्टीप्लिकेंट कहा जाता है और वो नंबर जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसे मल्टीप्लायर कहा जाता है. और रेस्ट ऑफ द मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट. और जो रिजल्ट होता है मल्टीप्लिकेशन का उसे कहा जाता है प्रोडक्ट. नेक्स्ट, नंबर्स कैन बी मल्टीप्लाइड इन एनी ऑर्डर. कि नंबर्स को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट, एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 0 इज ऑलवेज 0. किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमेशा 0 ही आएगा. एनी नंबर मल्टीप्लाइड बाय 1 गिव्स द प्रोडक्ट एज द नंबर इटसेल्फ. किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर खुद से प्रोडक्ट बन जाएगा. नेक्स्ट,
when a number is multiplied by 10, 100 or 1000, the product will be followed by as many zeros as there are in the multiplier. अगर हम किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो प्रोडक्ट है वो वही नंबर होगा जितने जीरोस मल्टीप्लायर में होंगे, राइट? उसी नंबर के आगे उन जीरोस को ऐड ऑन कर दिया जाएगा, राइट? So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.